my dear students, welcome to Maths of Fun and Art. My dear students, you all know that CBSE has announced a change in exam pattern for 2021-22 batch of classes 10th and 12th. So in this video, I am going to give you 3 important things regarding your first term exam. My dear students, in today's video, I am going to give you 3 important things. 1. The complete information about first term exam. And second, I am going to give you the deleted syllabus, questions, miscellaneous questions and the exercise along with page number from NCERT book. So be ready with me and open your book. And the third thing that is also crucial, very important, it is I am also going to tell you about the internal assessment, which will be of 10 marks in first term and 10 marks in second term. Dear children, now there is no ambiguity and uncertainty regarding syllabus. Dear children, you know that board will conduct exams with bifurcated syllabus. Now the syllabus with you and the examination pattern and time is also with you. See, tough lessons have been taught because of COVID pandemic. Either the exams are cancelled or rescheduled. So don't be under the impression that this time also exams may cancel. This time the exams will surely be there. Now I think this is the quite brilliant idea. This plan will surely encourage you all to study throughout the year. And now there is no ambiguity and uncertainty regarding the syllabus and exams. So the only antidote is be consistent with efforts and be ready, be prepared for every scenario. So let's see the book. What are the topics reduced? What are the questions? What are the examples? Please make a note. Tick in your book. I have given the page number also. Dear students, you know that CBSE has already announced 2-term examination policy for batch 2021-22. So I'm talking here about first term. The first term will be in the month of November or December, and the question paper will be MCQ based, 50% syllabus. The syllabus, CBSE has given the syllabus now. I will discuss it just now. And the question paper marking scheme, that CBSE will also send the question paper and the marking scheme both. MCQ based question paper will be only in OMR sheet. This is very crucial. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब की बार आपको लिखना नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ MCQ बेस है और आपको OMR शीट फिल करनी होगी. अब उसके बाद OMR में जो MCQ बेस आपका क्वेश्चन पेपर आना है वो किस टाइप से आना है. देखो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं. उसमें असर्शन रीजन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी भी उसमें होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें जो टिक करना होता है. केस स्टडी ऑलरेडी आई हैव गिवन यू इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, एंड सिचुएशन स्टडी भी हमने दिया है. नाउ वी विल फोकस ऑन असर्शन रीजन्स ऑल्सो इन नेक्स्ट टेस्ट. और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो जो इन डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस होती है, जो क्वेश्चंस की डेप्थनेस होती है, मीन्स आपको पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उठा के सीधे नहीं बन जाते हैं. वो किसी भी डेफिनेशन से बन जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम से बन जाएंगे, किसी थ्योरम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे. तो यू हैव टू गो थ्रू ईच नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बुक. NCERT और NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर भी आप पढ़ सकते हैं. हम इन सब के लिए आपको तैयारी कराएंगे.
Now this part of the video is very crucial. See, look here, deleted questions, exercise, deleted questions, exercise and examples also. मैंने इसमें examples भी लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी और मिसलेनियस के भी मैंने सारे डिस्कस किए हैं. आप NCERT बुक निकालो एंड बुक में से आप इसको टिक मार्क कर लो. टिक मार्क करेंगे तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, आपको फिर परेशानी नहीं होगी. रिलेशन फंक्शन, इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स एंड पेज नंबर 18 में एक्सरसाइज 1.3 आप टिक करेंगे और 1.4 ये फुल्ली डिलीटेड हैं. दीज एक्सरसाइजेज आर स्क्रैप्ड ऑफ. इसमें क्या था, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस है एंड इन्वर्स ऑफ द फंक्शन जहाँ पर हम एफ इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं वो पूरा डिलीट है. देन एग्जाम्पल नंबर आप टेक करेंगे इनको 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 to 40 ऑल, ये सारे एग्जाम्पल डिलीट हैं. देन मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं 45 एंड 49. अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हैं. दिस इज़ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14 एंड 18 एंड 19. ये रिलेशन फंक्शन में से डिलीट है. ये डिलीटेड सिलेबस है, इसमें बुक में इसको टिक कर लो. नाउ कम टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये दोनों चैप्टर मिला के 8 के आ रहे हैं. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पेज नंबर 47, ओपन पेज नंबर 47. इसमें एक्सरसाइज 2.2 फुल्ली डिलीटेड है, ये पूरी डिलीट हो गई है. एंड पेज नंबर 51 में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 17. अब ये टॉपिक क्या थे, आप टॉपिक इनमें लगा लो. इन ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी. आएगा क्या, सिंपल डेफिनेशंस एंड डेफिनेशन और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, रेंज डोमेन आएगा और प्रिंसिपल वैल्यूज़ आएंगी इसमें. ये जो एग्ज़ाम है पेज नंबर 47 एंड 51 पे आप इसको टिक कर लो. नाउ मूव टू नेक्स्ट. देखो हम जाते हैं मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का आएगा. नाउ ओपन पेज नंबर 97. 97 में एक्सरसाइज 3.4 फुल्ली डिलीटेड है, पूरा यहाँ पर कैंसिल कर दो. एंड एग्जाम्पल्स 15, 23, 24, 25 एंड थ्योरम नंबर 3. थ्योरम नंबर 3 कौन सी है, ये है यूनिकनेस की थ्योरम है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ऑपरेशन होते थे वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो और कॉलम से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, वो नहीं है अब. देन कम टू डिटर्मिनेंट्स, पेज नंबर 110 में आ जाइएगा. एक्सरसाइज 4.2 फुल्ली डिलीटेड, ये पूरी स्क्रैप्ड आउट. देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 to 16 इन्हें टिक कर लो, कैंसिल कर दो. मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 30 to 34 ये नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये नहीं आएंगे. मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, 4, 5. मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 एंड 17. आई होप आप इसमें टिक कर रहे होंगे, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स अब नहीं आएंगी. देखो डिटर्मिनेंट के थोड़े से एप्लीकेशन है, लाइक टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने वाला ये पार्ट आपके वहाँ आएगा. बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगा. दो ये आगे फर्दर मैथ्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना आप इसको. बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि इसमें से ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, ऐसा लगता है. अब आते हैं कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलस, जो कैलकुलस है ये नेक्स्ट टॉपिक है. कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. देखो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आती हूँ मैं, तो इसमें क्या है, दिस इज़ ऑफ 17 मार्क्स. ये 17 मार्क्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड देन एक्सरसाइज 5.8 ये फुल्ली डिलीट है, पूरी डिलीट कर दो. मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड
रोलीज थ्योरम, इसमें 2 थ्योरम आती हैं। वैसे तो ये इजी है बट हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो भी है ये फुल्ली डिलीट है। एग्जाम्पल 42 एंड 43 ये भी नहीं आएंगे। पेज नंबर 185 में आप टिक कर लो। देन डिफरेंशिएबिलिटी, अब आते हैं हम एप्लीकेशन। उसके अलावा सब कुछ आएगा, डिफरेंशिएशन पूरा एज इट इज़ है वो आना है। अब एप्लीकेशन डेरिवेटिव पेज नंबर 197 में देखिएगा। एक्सरसाइज 6.1 फुल्ली डिलीटेड, एक्सरसाइज 6.4 स्क्रैप्ड ऑफ। देन ये है क्या, अब मैं टॉपिक आपको बताऊं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आपके वहाँ नहीं आएगा, एक्सरसाइज 6.1 है। 6.4 में अप्रॉक्सीमेशन है, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज है, ये भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल कौन से नहीं आएंगे, 1 to 6 एंड 21 to 25 ये नहीं आएंगे, ये डिलीट हो गए हैं। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44 एंड 49 ये नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो गए। इसके अलावा आपको उसमें से सब कुछ पढ़ना है। 17 मार्क्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना और इम्पोर्टेंट भी है। देन अब आता है एक छोटा सा टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में अनबाउंडेड रीजन ये रिमूव हो चुका है, वो नहीं आएगा। देन आएगा क्या, देखो 12.2 ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीट है 12.2, क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है। और 12.1 में ये 12.1 है। 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 9 ये डिलीट है। इसमें अनबाउंडेड रीजन आता है, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो बाउंडेड रीजन का ही आएगा, अनबाउंडेड रीजन नहीं आएगा। बाकी वो ज़्यादातर एक्सेप्ट क्वेश्चन तो 12.2 में ही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ऑलरेडी जो बनी हुई हैं उसी में से कुछ फाइंड आउट करो, कोई पॉइंट निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें से क्योंकि 1 मार्कर बनाना ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इतना इजी भी नहीं लगता है। कोई केस स्टडी भी दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। ये जो टर्म 1 है या टर्म 2 है, टर्म 2 के लिए आई विल डिस्कस लेटर। इसमें 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी है। मीन्स आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट्स ये ज़रूर बनाने हैं। देन उसके लिए आपको क्या क्या है, वो 10 मार्क्स में 10 करके 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखो देन क्या होगा उसमें, टॉपिक टेस्ट। 12th क्लास के लिए टॉपिक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट टेस्ट का वेटेज है। एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ हैं, आपको एक्टिविटी भी जो करनी है वो एक्सप्लोरेटरी करनी है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल जो फाइल्स बनाते थे आप, एंड प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बनाना है। देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ CBSE के उसमें लिखा हुआ था, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ schools board will conduct both exams from home। ये CBSE का जो पहले सर्कुलर निकल चुका है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें, देखो जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट के लिखा है देन द रिजल्ट वुड बी कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट theory marks of term 1 and term 2 in class 10th and 12th subject to moderate or other measures to ensure the validity and reliability of the assessment। देखो इंटरनल असेसमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास 10 मार्क्स है अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन हमारी नॉर्मल हो जाती है और हम स्कूल खुल जाते हैं, और अगर नहीं खुलते हैं तो इस पर आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसलिए जो भी इंटरनल असेसमेंट होगा उसको आप बहुत ध्यान से ज़रूर कर लेना।